Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design subject. This is our third lecture, and in this lecture we are going to discuss about some properties of unit number 1, that is fundamental of machine design. There are different properties of material, out of which we are going to discuss near about 11 to 12 properties in this lecture, and you will going to understand all this property. Now we will start from the first property, that is strength. Here is the example of strength. A boy is holding a metal rod and applies external force at its end. Though the material is not bending or yielding, that time we can say as by applying external force when the material is not breaking or yielding, that time the material is having a better strength. Here is the definition of strength. Strength, it is a property of a material to resist the external force applied without breaking or yielding. Now we will consider another example. Consider this is a metal rod and we apply external force at its end for bending purpose, and after applying external force it get bend and break into two segments. That time we say as the strength property of this material is minimum as compared to the example. Okay, here the two words are important: without breaking and yielding. After this, the next property of material is fatigue. This is important point from exam point of view also. To understand the fatigue property, we will consider an example of a material rod. Here is a material rod and we are going to apply pressure at its both end. The yellow image is showing the fluctuating load, and when the fluctuating load is applied on any material or any machine component, that time we will get that load into a graphical form. In this image also we have a graph, and the graphical load represent that the fluctuating load. The red point is denote the fluctuating load which is applied on a material. At certain point it get into higher position and lower position. We can understand that the load is somewhere at its high position and somewhere at its lower position. Due to that fluctuating load, small crack formation get started where the weak portion in the material, and it get propagate up to the other end of material also. Due to this action, the material get breakdown into two types. That property is known as fatigue property. Now we will going to see the statement of fatigue. When a machine component is fails due to external repeated or fluctuating load. Here the word repeated or fluctuating is important one, and due to that load the material should fails. Okay, and another way we can write it as, in material science, the fatigue is the weakening of a material causes by cyclic loading. The cyclic loading is also mean that the repeated or a fluctuating load, that the result in progressive and localized structure damage. Here our structure is damaged into two parts, and the growth of crack formation. Okay, and our next property is elasticity. अब ये प्रॉपर्टी इजी है आपको समझने के लिए. इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ये दो प्रॉपर्टी हमेशा आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. इलास्टिसिटी ये सिंपल प्रॉपर्टी है. यहाँ पे भी हम फटीग में जो एग्जांपल कंसीडर किया था, जो मेटल रॉड कंसीडर किया था, सेम मटेरियल अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. एक मटेरियल ले लिया हमने और उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं. टेंसाइल फोर्स मीन्स व्हेन वी अप्लाई द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा लिया और वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और इस टाइप पे भी, इस एंड पे भी एक फोर्स अप्लाई कर दिया और यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई देगा कि after applying the external force the length of material get increases, and when the length of material get increases after removing that external force, अब यहाँ पे जो
येलो कलर का फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये येलो कलर का फोर्स अप्लाई करने के बाद में मटेरियल की लेंथ बढ़ गई। इसके बाद में हमने जो लोड है वो रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल लोड मटेरियल रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। जब मटेरियल उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज एक्वायर कर लेता है तब उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। It is the property of a material which enables it to regain its original shape after removing external load is called as elasticity। यहाँ पे अभी इसी एग्जाम्पल से हम प्लास्टिसिटी का भी एग्जाम्पल देखेंगे। जो हमने मेटल रॉड इलास्टिसिटी में लिया था वही साइज का मेटल रॉड लेंगे और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद में मेटल की जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल क्वांटिटी से इंक्रीज हो गई। जो डेल्टा एल क्वांटिटी से इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे लोड हमने बाद में निकाल लिया। After removing external load, when the material does not regain its original shape and size, जो कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी में क्या हो गया था कि मटेरियल ने उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज एक्वायर कर ली थी, पर यहाँ पे रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स मटेरियल डज नॉट रिगेन्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट टाइम द प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्लास्टिसिटी। मतलब अगर यहाँ पे हमने मटेरियल को एक्सटेंड कर लिया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स और उसकी शेप एंड साइज वैसे ही रहती है तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम प्लास्टिसिटी। अब हम प्लास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है उसको लिख सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इन विच बाय रिमूविंग एक्सटर्नल लोड द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, द प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, जैसे हमने इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ये दोनों प्रॉपर्टी को रिलेट की एक ही एग्जांपल से, वैसे ही हम एक एग्जांपल से डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे एक सर्कुलर स्टॉक लेते हैं, राउंड बार, और उसको हीट करने के बाद में अप्लाइंग एक्सटर्नल लोड हीट उसको वायर फॉर्म में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक स्टॉक को थीन वायर में जब हम फॉर्म करते हैं तब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कहेंगे डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं हम। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट इनेबल्स इट टू ड्रॉन आउट और इलोंगेट इन द फॉर्म ऑफ वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो प्लास्टिक का जो पेन है, यहाँ पे हमने पेन पे फिक्स कर दिया इस एंड पे और एक एंड पे हमने एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने के बाद में ये प्लास्टिक पेन थीन वायर में एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी नहीं है टू फॉर्म एन वायर, तो इसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। जब ये फॉर्म हो जाएगा एक वायर फॉर्म में तो इसको बोलेंगे हम डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में हमने ये एग्जांपल हमेशा देखा होगा, तो इसको हम कोरिलेट करेंगे मैकेनिकल एग्जांपल से। यहाँ पे हमने एक मेटल स्टॉक ले लिया और मेटल स्टॉक को हमने हीट कर दिया। हीट करने के बाद में या कोल्ड फोर्जिंग के बाद में यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो मतलब हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब हमने उस पर हैमर किया। हैमर करने के बाद में मटेरियल अगर थीन शीट में फॉर्म होता है, पहले डक्टिलिटी में क्या हुआ, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स टेंसाइल फोर्स, जब उस मटेरियल से एक थीन वायर फॉर्म होती है तो वो हो गया डक्टिलिटी। अब बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स उस मटेरियल से हमें एक थीन शीट मिलता है, रोलिंग शीट मिलता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे हम रीड करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट एनेबल्स इट टू अंडरगो चेंज इन शेप एंड साइज विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स द मटेरियल चेंजेस इनटू अ थिन शीट, बट द मेन पॉइंट इज इट शुड विदाउट ब्रेकिंग। The next definition is, you have to write in examination this definition. Malleability, it is the physical property of a material that defines their ability to hammered or press or rolled
इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। अगर इसको हम हैमर करते हैं, प्रेस करते हैं या रोल करते, रोलिंग मशीन से रोल करते हैं इनटू अ थिन शीट, एक थिन शीट में, बट वहां पे वो थिन शीट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस आपने हमेशा ये क्लासरूम में देखा होगा, चॉक जब ब्रेक होता है तब अगर इस पेन को हमने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसको हम बेंड करते हैं, अभी ट्राइंग टू बेंड, और ये अभी बेंड नहीं होगा, ये प्लास्टिक मटेरियल है, तो बेंड नहीं होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स जब ये बेंड नहीं होता, डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है, तब उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ब्रिटलनेस। वैसे ही चॉक है, चॉक अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो वो बेंड नहीं होगा, बेंड होने से पहले ही वो ब्रेक हो जाएगा। वैसे मेटल रॉड है, मेटल रॉड क्या होगा, वहां पे एक्सटर्नल लोड लगाने के बाद में वो बेंड होगा, बेंड होने के बाद उसकी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ तक वो बेंडिंग कैपेसिटी सस्टेन करेगा, पर उसके बाद में वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रिटलनेस की डेफिनेशन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग अ मटेरियल विथ लिटल परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर। ओके, ब्रिटलनेस के बाद में रेजिलेंस। रेजिलेंस में 3 डेफिनेशन आती है, इसमें से हम आज एक डेफिनेशन देखेंगे, रेजिलेंस एक्चुअल होता क्या है। द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, यहाँ पे एब्जॉर्ब एनर्जी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्जॉर्ब एनर्जी के बाद में कहाँ तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है, किस लिमिट तक एब्जॉर्ब करने के बाद में हम उसको रेजिलेंस बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। We will go through the definition. The capacity of a material to absorb energy within elastic limit. जो 2 प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस की, इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, दैट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या, अगर हम मटेरियल को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स द शेप ऑफ मटेरियल इज गेट चेंजेस, बट आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स द मटेरियल गेट इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यहाँ पे जो मटेरियल पे हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, वो जब फोर्स वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो उस लोड को हम रेजिलेंस बोलेंगे, उस कैपेसिटी को, एनर्जी एब्जॉर्प्शन को हम रेजिलेंस बोलेंगे। अगर मटेरियल इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में चला जाता है तब वो एब्जॉर्प्शन एनर्जी को हम रेजिलेंस नहीं बोल सकते, इट इज ओनली विद इन अ इलास्टिक लिमिट। तो इसके बाद में रेजिलेंस की 2 और डेफिनेशन है, 2 और टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट वन इज अ मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस एंड प्रूफ रेजिलेंस। ये दोनों पॉइंट जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखने के बाद में हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी देखेंगे और डेफिनेशन क्या होती है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है टफनेस। टफनेस के लिए हम एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मेटल का, और यहाँ पे मेटल के स्टॉक पे हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद में मटेरियल में क्रैक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, ये क्रैक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, और क्रैक फॉर्मेशन के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, पर यहाँ पे टफनेस, इस एग्जाम्पल से हम क्या डिनोट करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट स्ट्रक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर। ओके, जब हम हैमर करते हैं उस पर, हैमर करने के बाद में वो सस्टेन करता है, तब हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे टफनेस। स्ट्रेंथ में हैमरिंग फोर्स नहीं था। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड टफनेस, ये 2 एग्जाम्पल को आपको और एक बार स्टडी करना है। इसके बाद में लास्ट है क्रीप प्रॉपर्टी। क्रीप प्रॉपर्टी हमेशा आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन पूछी जाती है, और डेली लाइफ में भी ये एग्जाम्पल हमेशा आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन बाय क्रीप। तो यहाँ पे क्रीप में एक थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है, हम उसको पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते और एक एग्जाम्पल ले लेते। व्हेन अ मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस मतलब लोड लेते, अ कांस्टेंट लोड एट हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, लोड, टेम्परेचर एंड टाइम। इट विल अंडरगो अ स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब वो ये सब चीजें अप्लाई होने के बाद में एक स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन की ओर चला जाएगा, तब उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्रीप। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे हम, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल जो रॉड है, मेटल रॉड, यहाँ पे हमने उसको 2 सपोर्ट पे, सिंपली सपोर्ट पे हमने रेस्ट कर दिया। रेस्ट करने के बाद में एक कांस्टेंट लोड उस पर अप्लाई कर दिया। अब कांस्टेंट लोड अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा कि सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस और कांस्टेंट लोड, मतलब यहाँ पे मटेरियल के सेंटर में उसको वो लोड को अप्लाई कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बंदा खड़ा है उस पर लॉन्ग टाइम। आफ्टर दैट द मटेरियल स्लोली प्रोग्रेस करेगा परमानेंट डिफॉर्मेशन की ओर। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब ये बेंड हो जाएगा। अगर ये इस टाइप से बेंड होता है परमानेंटली, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्रीप प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे आपको सब प्रॉपर्टी हमारी खत्म होती है। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मूलेज एंड प्रॉब्लम देखेंगे, स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंड मतलब बेंडिंग जब होता है तब हम बेंडिंग प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रेकिंग मतलब ये एक कंटिन्यूअस रॉड है, ये ब्रेक हो गया तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये 2 सेगमेंट में ब्रेक हो गए। अब यहाँ पे स्ट्रेस मतलब क्या है, कॉम्प्रेसिव टेंसाइल मतलब कैसा होता है, और शेयर मतलब क्या है। शेयर के भी 2 टाइप है, सिंगल शेयर, डबल शेयर एंड अनदर 2। यहाँ पे जैसे ब्रेकिंग फिनोमिना है, ये ब्रेक हो गया मतलब हमें इमेजिन हो जाता है कि ब्रेकिंग मतलब क्या है, बेंडिंग मतलब क्या है। उसी टाइप से अगर हम स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस, इन सभी को अब हम एक एग्जाम्पल की ओर से, एग्जाम्पल की हेल्प से जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा और एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ही आपको समझ में आएगा। तो होती है, अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए इस टॉपिक पे तो आप वहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी नोट्स का है वहाँ पे आप करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आप तक अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन की लिंक आ जाएगी। और सारे लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। थैंक यू।